That is a question. That is easier for you to answer than for me to answer. Where do you find yourselves today compared to pre-2014? I can't answer that for you. I can't answer. As far as I am concerned, my wish would be to see a free and open media, see a media that is able to report facts on the ground as they exist, without any interference, without any pulls or pressures, without any telephone calls कि ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसको वापस ले लो. That is what I would like. Interaction is a step in that direction. Nobody sitting here, at least as far as I know, has been told what they can and can't answer. Nobody has been given a slip of paper and asked, you're free to put your hands up and ask whatever you like. Whether I can answer it or not is a different matter. I would like for this not to be a one-off event. I can't say that on this scale it will happen all the time, but at least twice a year. If we can have a freewheeling interaction like this without an agenda, without a subject, and without artificially imposed boundaries, maybe that will tell you where the press is today as opposed to my previous term. I mean, I'm often asked, did I learn any lessons from the last term? Yes, this is one of those lessons. Not having enough contact with you was, I think, a price that I paid in the previous government. Therefore, being more open and more accessible to you is something that I will definitely try to do in this term in office. आप माइक पकड़ लीजिए ना ताकि बाकी भी सुन लें. Now it's a combined all together. There's a proposal for it. And NIT expansion in Pulwama. So education from that is automatically. So how do you actually the people now these concerns because the recursive word already has said that the productive man has contributed. So what's the हमारी ये इस सवाल की अपनी अहमियत है और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी खासकर ज़मीन को लेके. हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए. मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता. Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया. They are concerned कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं. मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं. Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए, कहीं और ले लेंगे. और भी जिले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government
जब पुलवामा में बात हुई उन्होंने मुझे फोन किया, कहा ना अगर उनको वहां नहीं चाहिए मैं आपको जमीन दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT। वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल। So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. जमहूरियत है ना, हमने कब, और ये मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि ना अब ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहां पे और किसी को बात करने की इजाजत नहीं। मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है। उस हक को MP साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए। मुझे वो साल याद हैं जहां पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था। हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे। इनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा। मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई। इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे। उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूं। रिजर्वेशन का जहां तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court। जहां तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, MPs को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे MP साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। के बाद आपने जो मीडिया को प्रीमेट किया है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हर साहब आपको बताएं ना, मसाइल हालात में अगर यहाँ किसी ने इस फैक्ट्री को जिंदा रखा है तो प्रिंट मीडिया है, क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। हमने क्या क्या उन दिनों सहा है, तो कितने जो हमारी जर्नलिस्ट के जो अजीज थे वो बेचारी शहीद हो गई। लेकिन एक गरीबी है कि 2017 में जो रेट्स है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, वो अभी भी 75% है, क्योंकि आप बैठ कर रहे हैं इस वक्त यूपी के। अब वही रेट हमें जो प्रिंटिंग देना पड़ता है उससे कम हो गया है।
اس پر آپ ذرا دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم یہ سب جو پرنٹ میڈیا والے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سوال اٹھائے. اور دوسری بات جو سوال ہے، کیا آپ 2009 اور 2015 کے بیچ میں جو آپ وزیر اعلیٰ تھے، اس میں اور اس میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ جہاں تک ایڈورٹائزنگ ریٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی، نوٹ کیا ہوا. سیکٹری جو ہمارے ابھی ابھی آئے ہیں انفارمیشن کے، راجو صاحب، ان سے اور ڈائریکٹر انفارمیشن سے بات کر کے جو بھی ہمیں اس میں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. جہاں تک 2014 سے پہلے اور آج میرے میں فرق کیا ہے، بال اور زیادہ سفید ہو گئے، بڑھاپے کی طرف اب تیزی سے بڑھ رہا ہوں. کیا بدلاؤ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یہ آپ جب میرا یہ ٹرم ختم ہوگا اس وقت کہیے نا. میں اپنے منہ سے کیا کہوں؟ میں تو کہوں گا نا میں بہت اب زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں اور بہت مطلب قابل اب ہوں، لیکن میرے کہنے میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. جب آپ کہیں گے تو تب مجھے لگے گا کہ واقعی فرق آیا ہے. تو جب 4 سال اور 10 مہینے لگ بھگ رہ گئے ہیں نئے الیکشن کو، اس وقت بتائیے نا کہ پچھلے ٹرم اور اس ٹرم میں اگر آپ کو کوئی فرق نظر آیا یا نہیں. مجھے تھوڑا سا فرق فی الحال میں آپ سے کہوں مجھے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ جو پچھلے دنوں برف باری ہوئی، میں مان کے چلتا ہوں نا، اگر 2009 شروع میں اس طرح کی برف باری ہوئی ہوتی میرا رسپانس اس طرح کا نہیں ہوتا. ڈی سیوں کو میٹنگوں میں شامل کرنا، آنریبل ایم ایل اے سے فیڈ بیک لینا، کٹنگ اکراس پارٹی لائنز، یہ 2009 میں مجھ سے نہیں ہوتا. آج ہوا ہے کیونکہ تھوڑا سا بدلاؤ تو آ ہی گیا ہے. No, they'll be passed now. You put your, as the Director Information Sahab said, just put your hand up and it will reach you. Why don't you do one thing? Those of you who want to ask a question, I'm sure most of you have pen and paper with you. Just put your names on a slip of paper, send it up to the Director Information. It will be easier than him looking for your hands, because that becomes a little tougher. Just send up a slip of paper. He'll go through those and call your names out one by one. آپ پوچھ لیجئے نا. اچھا عمر صاحب، جب 370 کو ریووک کیا گیا اس کے بعد بی جے پی گورنمنٹ نے کامن ریفرین کہا کہ مسئلہ کشمیر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہوا ہے. لیکن آپ کا جو ہائی وولٹیج کیمپین تھا جس میں لوگ جڑے، اس میں آپ نے کہا کہ یہ الیکشن بجلی پانی سڑک کے لیے نہیں ہے، یہ شناخت بچانے کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے. تو آپ اس وقت ظاہر ہے آپ کی بہت کم عرصہ ہوا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر اگر ہمیشہ کے لیے ریزالو ہوا ہے، کیا آپ اسے بلیو کرتے ہیں ایز لیڈر آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی؟ ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان کے بھی چلیں نا کہ جموں کشمیر کا اس طرف کا حصہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ریزالو ہوا ہے. جموں کشمیر کا ایک حصہ سرحد کے اس طرف بھی ہے نا. جب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا اب ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہے، کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ جو ایل او سی کے پار والا حصہ ہے جموں کشمیر کا، اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہے نا. مسئلہ کشمیر ابھی بھی ہے، چاہے سرحد کے اس طرف یا اس طرف، اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہو. آپ کو لگتا ہے جو آپ کا ایجنڈا ہے
आपको लगता है आप कर पाएंगे वो, या फिर सब कुछ कभी होगा जब तक? बिजली के हवाले से आपने सवाल किया, वो सही है। हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की जरूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा है। फिलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज्यादा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा। जितने ज्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएं, तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज्यादा बिजली जो है वो बैंक करें, ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। लेकिन मीटरों के हवाले से आपने बात की, ये हकीकत है। फिलहाल हमारे जम्मू कश्मीर के जो AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% से ज्यादा हैं। मतलब हर रुपए बिजली जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50 पैसे हमें वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमारे मुकाबले में जो रियासतें हैं उन्होंने इस नंबर को अब 10, 15, 17% पे उतारा हुआ है। हम आज भी 50% से ज्यादा हैं। तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम हम भी 20% से कम अपनी AT&C लॉसेस को लाएं, ताकि और ज्यादा बिजली हम लोगों को सप्लाई करें। इसके साथ साथ हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां अग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते। हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज का फायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फायदा होगा मीटर का। डिप्टी CM साहब का अब अनशेड्यूल्ड पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ता है। उसके लिए भी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करें, ताकि लोगों को पता चले किस इलाके में कहां पे शेड्यूल के मुताबिक हमें मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ेगा। अनशेड्यूल्ड तब होता है जबकि या तो ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई सिस्टम में फेलियर हो। उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो। आपने डिप्टी CM साहब से कुछ पूछा था कि अब क्या लग रहा है ना, अब उतना ही जोश है। हाउ इज द जोश, शायद पूछा इसने। देखिए, हमें समझ नहीं आती कि ये बार बार आप ये सवाल क्यों हमें पूछते। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर आज कहूंगा, फिर मैंने वही कहा आराम से उस समय। जी अभी फिर 20 दिन और है ना, अभी 2 महीने ही हुए हैं। लेकिन एक चीज हम कहें कि जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूक साहब और चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने जो इलेक्शन में हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हम नहीं कर रहे। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहला ही रेजोल्यूशन वहां पे पास किया और कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दोबारा दिया जाएगा, हमारी खोई हुई इज्जत हमें बहाल की जाए। दूसरा, हमारी पहला हाउस लगा, पहले हाउस में ही हमने रेजोल्यूशन वहां पे पेश भी किया और पास भी हुआ, जहां हमने कहा कि हमारा खोया हुआ स्टेटस, और जो हम खोया हुआ स्टेटस कहते हैं, ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। और आपको याद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम किसी बाहर को नहीं लेने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद करें। इसलिए उन्होंने भी इलेक्शन में कहा था, अगर आपको याद होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए उस रैली में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए, ये सवाल खास वहां भी पूछा जाए कि आपने ये वादा किया था। और उम्मीद करेंगे आप जब वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम दावे से कहते हैं, जो हमने कहा है उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं
और करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे. थैंक यू. We have received a lot of steps, so I call the names. Request you all to be patient. We'll try and come to everybody. Ms. Navik from the Indian Express. Hi, sir. Since we're here in the dead of the winter, I wanted to get a sense of the state of metering and cabling in J&K to check pilferage, and also what is it costing the exchequer right now to buy electricity from the Northern Grid? The CS is also here. The pilferage question came up in the sort of in a roundabout way in the answer that I gave. In terms of the metering, it's an ongoing process. It's part of the Government of India scheme. We are committed to implementing it, and we will. Obviously, the more metering that happens, the less pilferage there will be. That is actually the aim of this, and which is why both the J&K administration as well as the Power Ministry, Government of India, are keen to see these reforms go forward and taken to their logical conclusion, which we will do. The second part of your question was how much is it costing us? What are we spending every day to buy electricity? 9,500 crores a year. 9,500 crores a year is how much we are spending to buy. And if you work on our AT&C losses of just over 50%, you can do the maths. That's what it's costing the exchequer. Mr. Nazir Masoodi from NDTV. सबसे पहले तो मीडिया के तमाम दोस्तों को इस मौके पे मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों के तरफ से आप सबको एक तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और नए साल की आप सबको मुबारकबाद. उम्मीद की जाती है कि 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो. एक अच्छे मौके पे ये साल जो है इसकी शुरुआत हो रही है. मैं अपनी जगह याद करने की कोशिश कर रहा था कि जो 6 साल का अरसा मेरा वजीर आला की कुर्सी पर रहा, 2009 और 2015 जनवरी के दरमियान क्या इस तरह का कोई इस बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा गया था या नहीं, और मुझे याद नहीं है कि इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम जो है रखा था. बीच बीच में आप सबों से मुलाकात तो होती रही, लेकिन वो किसी ना किसी या तो हादसे के बाद या मुद्दे को लेके आज जो है ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और खासकर हमने लफ्ज़ भी मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो है वो सही होगा. अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आम तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ. इस मौके पे हालांकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं. कोई ऐसी बात नहीं है ना. मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं. हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फर्ज भी बनता है. हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की बात जो है हम तक पहुंचे. और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो जरिया है वो मीडिया है. और इसलिए आज का ये जो ये प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज किया गया. कोशिश की जाएगी जब आपके सवाल आएंगे तो as honestly as possible we will answer them. हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है
जम्मू कश्मीर का यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं। और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं। लोगों के जो डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात का जो है हमें उनका कदर करना होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज करना होगा, उन पर उतर आना